students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is states of matter. You will be aware about matter, states of matter, changes in state of matter and dissolving solids in water. We can see a lot of things around us. Chair, table, pen, pencil, buildings, eraser, toy, car, etc. All these things have different shapes, sizes and colors. All these things have some weight and they occupy some space. जितनी भी चीज़ें आपको आसपास दिखाई दे रही है, छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, वेट भी उनमें होता है, मास भी होता है और वो एरिया भी ऑक्यूपाई करते हैं. Now let's see what exactly is matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. Basic definition. किसी भी चीज़ में अगर आपका मास है, जगह घेर रहा है, चाहे छोटी सी जगह क्यों ना घेरे, वो आपका मैटर में आ जाएगा. Air, water, soil, wood, etc. are all matter. We and other living beings are made up of matters too. हवा, पानी, मिट्टी, human beings, जानवर, plants, हर कोई matter से ही बना है. All the matter is made up of very tiny particles called atoms. Atoms are so tiny that they cannot be seen with naked eyes. Two or more than two atoms combine to form molecules. Molecules further combine together to form matter. अब आपके मैटर की शुरुआत एक्चुअल में कहाँ से होती है? जितने भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो टाइनी पार्टिकल से बनती है, विच इज नोन एज एटम. ये एटम इतना छोटा होता है, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा. दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. मॉलिक्यूल्स फर्दर कंबाइन होकर आपका बनाते हैं मैटर. तो मैटर बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से. मोर टू नो, मैटर कैन बी परसीव्ड बाय टचिंग, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग एंड बाय लिसनिंग. तो मैटर को आप परसीव करने का मतलब क्या है? उसको आप एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो? या तो टच करोगे, सुनोगे, देखोगे या टेस्ट करोगे. इन चीज़ों की मदद से आप मैटर को एक्सपीरियंस कर सकते हो. Another more to know, no one has ever seen any atom. They are too small to be seen by a microscope and cannot be counted or weighed individually. अब मैटर को, एटम्स को किसी ने भी नहीं देखा है. इतने छोटे होते हैं, आपको माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देंगे, ना ही इनको आप काउंट कर सकते हो. और क्योंकि काउंट नहीं कर पाओगे तो नेचुरल सी बात है, वे भी आप, यानी कि इनका वजन कितना है वो भी नहीं पता चलता. ट्राई आउट. Look at the pictures and write the names of matter these are made up of. अब यहाँ पे आपकी पिक्चर्स हैं, जैसे यहाँ पे टेबल है, स्पून है, आपको बताना है ये कौन से मैटर से बना है, which state of matter they are made up for. Now let's see the states of matter. We know that trees, water and air all are matter. Even though they look so different, trees, water and air look different because they exist in different states of matter. अब matter जो है आपका, पेड़ हो गया, हवा हो गई, पानी हो गया, इतने अलग हैं ये सारे अपने shapes में, structure में, but still they are matter. क्यों? क्योंकि matter की भी अलग अलग state होती है और अलग अलग states of matter में अलग अलग चीज़ें exist करती हैं. Matter exists in 3 different states: solid, liquid and gas. Number 1 is solid. Solid have definite shape. The shape of a solid does not change easily. Solids are hard and occupy definite volume. The molecules in solids are closely packed. The distance between any two adjacent molecules is very small. Because of this, their shapes remain fixed. However, if we apply force, some solids can change their shapes. Marble, wood, book, pencil, chalk, etc. are some examples of solids. अब solids की definite shape होती है, इनका shape आप change नहीं कर सकते हो क्योंकि इनका shape fixed होता है. solid तो होता ही है, hard भी होता है, definite shape का मतलब होता है एक ही fixed रहता है. मॉलिक्यूल्स इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, एडजस्टेड, एक दूसरे के साथ होते हैं और इतने टाइट होते हैं जिसकी वजह से आप इनका शेप नहीं बदल सकते हो. बुक हो गई, पेंसिल हो गया, चॉक हो गया, इनकी शेप डेफिनेट रहती है. नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड. Liquids do not have any definite shape. They acquire the shape of the container in which they are kept. Liquids have definite volume. Molecules in liquids are loosely packed. The distance between any two adjacent molecules in liquid is greater than that of solids. अब liquids जो होते हैं इनकी definite shape नहीं होती है, वॉल्यूम इनका एक ही रहता है. अब अगर आपने कटोरे में 1 लीटर पानी डाला है, उसको अगर आप पतले से ग्लास में डाल देंगे तो शेप उसका ज़रूर बदल जाएगा, लेकिन 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा दूसरे ग्लास में कंटेनर में जाने के बाद भी. वॉल्यूम सेम रहता है. अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड्स.
Does liquids can flow easily from one place to another? So liquids are also called fluids. Milk, water, oil, juice, tea, etc. are some examples of liquids. अब liquids बहुत आसानी से flow कर जाते हैं, जैसे जहाँ फेंकेंगे वैसे ही flow करने लग जाते हैं. That is why they are known as fluids. Milk, water, oil, juices ये सारे fluids के example हैं. Third state of matter is gases. Like liquids, gases also do not have any definite shape. Gases do not have any definite volume. In fact, they occupy all the available space in a container. Molecules and gases are far apart. They are free from one another. We do not generally see gases but can feel or smell them. अब gases जो होते हैं third state of matter, ना definite shape है, ना definite volume है. जिस कंटेनर में आप डालेंगे वो सारी की सारी जगह घेर लेता है. अगर आपने एक कमरे के अंदर गैस डाली, थोड़ी सी भी डालेंगे वो पूरे कमरे में फैल जाती है. देख आप इसको नहीं सकते हो, स्मेल कर सकते हो और फील कर सकते हो. Air and steam of boiled water are some examples of gases. However, air is a mixture of different gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapor, etc. Gases can also flow from one place to another, so gases are also called fluids. Air हो गया, आपका steam जब निकल रहा होता है, ये सारे gases के example हैं. However, air में आपकी अलग अलग type की gases present होती हैं, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapors. अब gases भी बहुत आसानी से flow कर जाते हैं, hence gases को भी fluids बोला जाता है. Changes in state of matter. Matter can change from one state to another. Some matters like water can exist in all the three states. अब matter जो होता है वो एक state से दूसरी state में जाता है, और कुछ matter ऐसे होते हैं जैसे water जो तीनों ही states में आपके exist कर सकते हैं. Solid form में ice होता है, फिर आपका liquid form में water बन जाता है, gaseous form में water steam बन जाता है. The process by which a liquid is converted into its vapor on heating is called steam. In nature, the heat of the sun converts liquid into water vapors and is called evaporation. अब जिस process से liquid आपका धीरे धीरे vapors में convert होने लग जाता है heat होने पर, that process is known as steam. पानी को आप उबालेंगे, उसके ऊपर lid अगर आप रखेंगे और हटाएंगे तो उसके ऊपर आपको tiny droplets दिखाई देना शुरू हो जाएंगी. Steam इसे बोलते हैं. नेचुरल प्रोसेस जो आपका नेचर होता है उसमें जब आपकी सनलाइट पड़ती है, वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. When steam or water vapor gets cooled, it is converted into liquid again. This process is known as condensation. अब आपका जैसे ही धीरे धीरे जैसे आप किसी भी गर्म चीज़ को आप ठंडा करने के लिए अगर आप रख देंगे, स्टीम करेंगे आप पानी को, गैस बंद कर दीजिए, उसके ऊपर फिर से आप एक प्लेट रख दीजिए. जैसे जैसे पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो प्लेट की नीचे वाली सरफेस में फॉर्म होने लग जाती है जैसे जैसे पानी कूल डाउन होने लग जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट्स into a liquid, it is called melting, and when a liquid converts into a solid, it is called freezing. Similarly, solid को अगर आप melt करोगे वो liquid में बन जाएगा, इसे melting बोलते हैं, और liquid को वापस को आपको solid में convert करना है, that process is known as freezing. Evaluate yourself. Fill in the blanks. Now here are some questions जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके आंसर्स आपको खुद से देने हैं. Dissolving solids in water. The process in which a solid or a gas completely mixes or dissolves in a liquid is called dissolution. अब जिस process में आपका जो solid या gas completely liquid में dissolve हो जाता है, पूरी तरीके से कोई substrate नहीं छोड़ता है, उसको बोलते हैं dissolution. Solids such as sugar and salt dissolved completely in water. The solid that dissolves in water is called a solute. The liquid in which a solid dissolves is called a solvent. The liquid that we get after a solid dissolves in a liquid is called a solution. अब जैसे sugar हो गया, नमक हो गया, पानी में आप इसको dissolve करेंगे तो वो completely dissolve हो जाता है, नीचे आपको sugar या salt के particles नहीं दिखाई देंगे. अब जिस वाटर में जो सॉलिड आप डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट आपने डाला है तो सॉल्ट सॉल्यूट हो जाएगा, पानी में डाला है जिसमें वो डिजोल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट हो जाता है, और दोनों को डिजोल्व करने के बाद जो आपको सब्सटेंस मिलता है वो आपका सोल्यूशन होता है. When chocolate powder is added to milk, the chocolate powder is the solute, milk is the solvent and chocolate milk is the solution. अब chocolate milk आपको बनाना है तो chocolate आपका solute बन जाता है, milk आपका solvent, solution जो आपको मिलेगा वो chocolate milk होगा. We know that the particles in a liquid are loosely packed, leaving a lot of space. तो आपको अभी तक ये पता चल चुका है कि जो liquid होता है उसमें जो आपके particles होते हैं वो loosely packed होते हैं.
between the particles. The solute particles break down into thinner particles when added to the solvent and get uniformly evenly distributed among the particles of the solvent, thus leaving no change on the level of water. अब जो आपके जैसे जैसे आप कोई भी चीज़ जब आप सॉल्वेंट में डालते हैं तो आपके लिक्विड में क्योंकि लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस रह जाते हैं. इसी वजह से जैसे जैसे आप सॉल्यूट्स को डालते हो, सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में मिक्स होने लग जाता है, वो आपका आसानी से आपस में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो आपका लिक्विड का लेवल होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो चेंज नहीं होता है. इट्स अ फैक्ट. The salt we use in our food, called table salt, is obtained from seawater. It is obtained by letting seawater flow into shallow pools constructed near seashore by the action of solar heat. Water evaporates from the seawater, leaving behind the salt. The salt contained is filtered by many processes in laboratories, then added with a required amount of iodine is added to it. This is how salt is obtained. जो आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है, टी स्केल डाला जाता है, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ये सी वाटर से निकाला जाता है. जो आपका सी होता है जहाँ पे, वहीं पे साइड में ही थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है, पानी जैसे उसमें डालते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस से पानी सारा का सारा खत्म हो जाता है, नीचे बच जाता है आपका सॉल्ट. इस सॉल्ट को फिल्टर आउट करा जाता है लैबोरेटरीज में, आयोडीन उसमें थोड़ा डाला जाता है और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है. मटीरियल्स. Different types of matter are called materials. For example, plastic, wood, iron, paper, fiber, etc. are called materials. Materials are obtained from plants, animals and from the earth. अलग अलग टाइप का मैटर आपका मटीरियल में आता है. प्लास्टिक, वुड, आयरन, ये सारे आपके मैटर में हैं, जिनको मटीरियल बोला जाता है. और ये आपको प्लांट्स, एनिमल्स और अर्थ में अलग अलग सर्फेसिस में अलग अलग तरीक़ों से ऑब्टेन होते हैं. मटीरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से आपको क्या क्या मिलता है? यू गेट वुड, रबर, पेपर एंड फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, कॉयर एट्सेट्रा आर द मटीरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. लकड़ी आपको मिलती है फर्नीचर बनाने के लिए, रबर आपको मिलता है, पेपर जिससे आपकी बुक्स, नोटबुक्स बनती हैं, फाइबर्स जिससे कपड़े बनते हैं, कॉटन, जूट, कॉयर, ये सारी चीज़ें आपको प्लांट से डिराइव होती हैं. मटीरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वुल, सिल्क एंड लेदर आर सम मटीरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. जितने भी आपका वुल हो गया, जो गर्मी सर्दियों में आप पहनते हैं, आपकी बॉडी को वार्म प्रोवाइड करता है, सिल्क, लेदर, ये सब आपको जानवरों से मिलता है. मटीरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. Clay, metal and petroleum are some materials which are obtained from the earth. Clay dug out from the earth is used to make pots, bricks and tiles. तो clay आपका होता है, मेटल, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें आपको अर्थ से मिलती है. इसके अलावा जो मिट्टी आपकी अर्थ के सरफेस से निकाली जाती है, उससे आपके पॉट्स, ब्रिक्स, टाइल्स, ये सब चीज़ें भी बनाई जाती हैं. Metals like aluminum, iron, copper, silver, gold, etc. are also obtained from the earth. Petroleum dug out from deep inside the earth. Petroleum gives petrol, diesel, kerosene, wax, Vaseline and plastic. Similarly, coal is extracted from coal mines lying deep inside the अर्थ. इसके अलावा आपके अलग अलग मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको अर्थ से मिलती है. पेट्रोलियम डग करा जाता है अर्थ के डीपर सर्फेसिस में से, और पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, वैसलीन, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें आपको पेट्रोलियम से मिलती हैं. टर्म्स टू लर्न. Matter, anything that has mass and occupies space. Molecules, very small particles present in matter. Solute, a solid that dissolves completely in a liquid. Solvent, a liquid in which a solute dissolves. Solution, a liquid obtained when a solute dissolves completely in a solvent. तो matter, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मॉलिक्यूल्स आपके टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो आपके मैटर में प्रेजेंट होते हैं. सॉल्यूट जो होता है वो आपका लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है. जिस लिक्विड में डिसॉल्व करवाया जाता है सॉल्यूट, वो सॉल्वेंट होता है. दोनों को मिक्स करके जो चीज़ प्रोडक्ट आपको मिलती है, इट इज़ अ सोल्यूशन. स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं खुद से करिए.